Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantor Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you class 4 English textbook. We are going to start our lesson from unit 1, Speaking the Truth. Essay laws of this lesson are: use pre-reading strategies to predict the content, vocabulary of text from picture and title, etc. Locate specific information to answer short questions. Write sentences of their own by using correct capitalization, punctuation and spellings. We have started our unit 1, Speaking the Truth, in our previous lessons. So we will continue the unit in this lesson too. What we have read about the truthfulness and their benefits. Islam teaches us to speak the truth, never tell a lie, and Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the true symbol of it. He always speaks the truth in his life and also guide other people to speak the truth. Let's continue from here. Page number 5 of your textbook. Next day he wanted to have some wine. When he was about to do so, he again thought, what shall I say to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam if he asked me what I did during the day? अगले दिन उसने क्या पीनी चाहिए? वाइन, शराब पीनी चाहिए. उसी आदमी ने जो चोरी करना चाहता था, लेकिन उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि वो बुरे काम छोड़ देगा और सबसे पहले बुरे कामों में वो झूठ बोलना छोड़ेगा. तो उसने किस डर से चोरी नहीं की कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर पूछा कि तुम कल रात कहाँ थे, तो वो झूठ नहीं बोल सकेगा क्योंकि उसने वादा किया था. और अगर वो सच बोलेगा कि मैंने चोरी की थी, तो सब लोग उससे नफरत करेंगे. अब दिन के टाइम उसने शराब पीनी चाहिए, तो फिर दोबारा उसको अपना किया हुआ प्रॉमिस याद आया और उसने सोचा कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम दिन के दौरान क्या कर रहे थे, I cannot tell a lie. मैं झूठ नहीं बोल सकता. If I speak the truth, people will condemn me for drinking wine. Condemn me, मुझे blame करेंगे, इल्जाम लगाएंगे मुझ पे, बुरा भला कहेंगे शराब पीने पर. Thus he gave up the idea of drinking alcohol. फिर उसने क्या किया? शराब पीने का आइडिया छोड़ दिया. In this way, whenever the man thought of doing something wrong, he would remember his promise. Soon he gave up all his bad habits and become a good Muslim. What we have read in this line? He gave up the idea of drinking and all the bad habits because he promised to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam that he will become a good man and will leave all the bad habits, which including stealing and drinking wine and telling a lie. People trust a man who speaks the truth. They respect him and accept every word of his to be true. On the other hand, if a man tells a lie, he loses regards in the eyes of the people. जो लोग सच बोलते हैं उनकी इज्जत की जाती है और जो कोई झूठ बोलता है लोगों की नजरों में रिगार्ड, उसकी अहमियत और इज्जत कम हो जाती है. Almighty Allah is also displeased with the liar. Displeased अल्लाह भी झूठे बंदे से नाखुश होता है. A true person has peace of mind. जो सच बोलता है उसको जहनी सुकून मिलता है, while a liar remains unhappy and worried. बल्कि झूठ बोलने वाला क्या होता है? नाखुश और परेशान रहता है. Therefore we should practice truthfulness in all times and situation. तो इसलिए हमें हमेशा हर किस्म की सिचुएशन में हर वक्त सच बोलना चाहिए. If we always remain truthful, अगर हम हमेशा सच बोलें, Allah will help us in doing good deeds. तो अल्लाह हमारे अच्छे कामों में हमारी मदद करेगा. We shall be rewarded here. और हमें इसका इनाम यहाँ पर हमें अपनी जिंदगी में मिलेगा and in the world hereafter. और दूसरी जिंदगी में जब आखिरत के बाद जिंदगी होगी, कयामत के बाद जब जिंदगी होगी, तो उसमें भी अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा. तो इस सबक में हमने सच बोलने के फायदे भी पढ़े और एक आदमी का वाकया पढ़ा जो अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहता था और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनसे प्रॉमिस किया कि वो अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देगा और सबसे पहले वो झूठ बोलना छोड़ेगा. तो उन प्रॉमिसेस का क्या फायदा? उसने सारी बुरी आदतें छोड़ दी और सच बोलने लगा. सच बोलने के फायदे हमने इस पैराग्राफ में पढ़े, लास्ट पैराग्राफ में, कि हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं. अल्लाह भी खुश होगा, इज्जत देगा और हमारे हर काम में मदद करेगा. अगर हम झूठ बोलेंगे तो लोग भी ना खुश होंगे, अल्लाह भी ना खुश होगा और हमारी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं होगी. On page number 6 we have a word bank here.
You can find the meaning of the difficult words here. And let's move to the remaining questions, 3, 4 and 5th. What happens if someone tells a lie? क्या होता है जब कोई झूठ बोलता है? The 4th one, what are the benefits of speaking truth? ये लास्ट पैराग्राफ के आपके यूनिट में है इसका आंसर. 5th one, what did you learn from this lesson? आपने अपना ओपिनियन बताना है कि आपने इस सबक से क्या सीखा. Question number 2, learn the following words for dictation and make meaningful sentences in your notebook. You have to pronounce these words and find the meaning of this word from the dictionary and use them in your sentences. But be careful if you make sentences, be careful with the punctuation like capitalization and spellings. और sentence अगर आप बना रहे हैं प्रेजेंट सिंपल में लिखना है तो प्रेजेंट सिंपल में लिखें, पास्ट सिंपल में लिखना है तो सेकंड फॉर्म यूज करें और प्रेजेंट सिंपल में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. तो जितने भी यहाँ वर्ड्स हैं इसको अपने सेंटेंसेस में आपने यूज करना है. ये आपका होम टास्क भी हो गया एंड दिस इज ऑल्सो योर होम टास्क. क्वेश्चन नंबर 3, मार्क द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस. जितने भी सेंटेंसेस हैं ये आपकी टेक्स्ट से दिए गए हैं और वी हैव अ ऑप्शन हियर, 4 option here for each sentence. You have to choose the right one. For example, the first one is Islamic teaching leads our lives towards what? Freedom, knowledge, adventure or peace. आपने इसमें से right answer choose करना है. And this exercise is from your text. Dear students, ये आपका होम टास्क है समर पैक से पेज नंबर 5 से. आपने क्या करना है, ये पैराग्राफ पढ़ना है पूरा और इसको समझना है. उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 का आंसर इसी पैराग्राफ से देना. सारे आपको आंसर इन क्वेश्चंस के इसी पैराग्राफ में मिलेंगे. आपकी दूसरी एक्टिविटी है मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन बाय यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स. आपने सेंटेंसेस बनाने हैं लेकिन जो कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन और स्पेलिंग रूल जो हमने डिस्कस किए थे वो आपने इस सेंटेंसेस में आपने उस चीज का बहुत ख्याल रखना है. कैपिटलाइज करना है फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस. आखिर में आपने फुल स्टॉप लगाना है. जहां पर कॉमा की ज़रूरत हो आपने वहां पर कॉमा लगाना है. पंक्चुएशन का आपने बहुत ख्याल रखना है, करेक्ट स्पेलिंग्स का भी ख्याल रखना है और ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जिनका कोई मीनिंग हो. पेज नंबर 7 पे भी कुछ वर्ड्स हैं जिसके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. I hope you have enjoyed my lesson. Thank you.